الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ عرض و معروض سے قبل یعنی کچھ سننے اور سنانے سے پہلے میں بہتر و مناسب یہ سمجھتا ہوں، اور صرف بہتر و مناسب ہی نہیں بلکہ افضل و انسب، اور صرف افضل و انسب ہی نہیں بلکہ کچھ عرض و معروض سے قبل واجب ضروری یہ سمجھتا ہوں کہ ایک مرتبہ اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے حضور رحمت للعالمین طٰہٰ و یاسین وہ رسول ہاشمی باوقار صلی اللہ علیہ وبارک وسلم جس کو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے کلام میں کہیں یا ایھا النبی کہہ کر کے پکارا ہے تو کہیں یا ایھا الرسول کہہ کر کے پکارا ہے۔ ایسے بابرکت رسول صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے ہم اور آپ امتی ہیں، غلام ہیں، جس کو رب نے کلام پاک میں کہیں یا ایھا المزمل سے نوازا ہے تو کہیں یا ایھا المدثر کا خطاب دیا ہے۔ وہی رسول ہاشمی باوقار صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پرانوار میں گنبد خضرا کو نگاہوں میں بسا کر محبت بھرے انداز میں دل لگا کر باواز بلند ہدی درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیک صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ اے میرے آقا حسین کے غلاموں، جب بھی کوئی شاعر یا کوئی خطیب آپ حضرات سے درود پاک پڑھنے کے لیے کہے تو کنجوسی نہ کیا کرو، کیونکہ درود پاک پڑھنے سے تمہارا بڑا فائدہ ہے۔ آؤ ایک حدیث پاک ملاحظہ کرو، اندازہ لگ جائے گا کہ درود پاک پڑھنے سے کتنا فائدہ ہے، اور یہ آرزو کرو گے، یہ خواہش کرو گے کہ میں پوری زندگی درود پاک ہی میں لگا دوں۔ حضور سرورہ انیس بے کساں رحمت للعالمین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم حجر عائشہ میں تشریف فرما ہیں۔ حضرت جبریل امی حاضر ہوتے ہیں، آقائے کریم کے قدم مبارک کو چوما اور چوم کر کے خاموشی کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ حضرت جبرائیل بیٹھے کہ فوراً حضرت میکائیل بھی آئے اور وہ بھی میرے آقا کے قدم مبارک کو چوما اور خاموشی کے ساتھ بیٹھ گئے۔ تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی آ گئے، اور حضرت اسرائیل جنہیں ہم اور آپ ملک الموت کہتے ہیں، ایک ہی نشست میں، ایک ہی بیٹھک میں، ایک ہی جلسہ میں، ایک ہی وقت میں چاروں بڑے فرشتے آقائے کریم کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ غیب داں نبی جب اتنا دیکھتے ہیں لبہائے مبارک تبسم ریز ہو جاتے ہیں، میرے آقا مسکرانے لگتے ہیں، اور جب میرے آقا مسکراتے ہیں تو قسم ہے وحدہ لا شریک کی مدینے کے در و دیوار جب مسکرانے لگتے ہیں۔ غیب داں نبی جب مسکراتے ہیں چرند و پرند مسکرانے لگتے ہیں، خشک و تر مسکرانے لگتے ہیں، برگ و ثمر مسکرانے لگتے ہیں۔ مسکرا کر غیب داں نبی ارشاد فرماتے ہیں، اے فرشتو، ایک ہی وقت میں چاروں فرشتے کے آنے کا وجہ کیا ہے، آنے کا مطلب کیا ہے؟ جبریل امی پھر آقائے کریم کے قدم مبارک کو چومتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے میرے پیارے آقا، میدان محشر قائم ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کی مدد کرنے کے لیے تیار نہ ہوگا،
जहन्नम के ऊपर एक रास्ता होगा जो तलवार से ज़्यादा तेज़ और बाल से ज़्यादा बारीक होगा। आकाए करीम ने इरशाद फरमाया, हसन हुसैन के नाना ने इरशाद फरमाया, ए जिब्राइल हमें पता है, मुझे मालूम है। कहा मेरे आका जो मैं कहना चाहता हूँ इसे आप सुन लीजिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया बोलो। जिब्राइल अर्ज करते हैं, ए मेरे आका जो आपका गुलाम आपका उम्मती फर्शे खाक पर बैठकर यानी ज़मीन पर बैठकर मोहब्बत के साथ आपकी बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश करेगा, उस वक्त मैं अपने हाथ से उसके हाथ को पकड़कर पुलसिराज से पार कर दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना कहने के बाद हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, ए अल्लाह के प्यारे नबी इन तीनों फरिश्तों की मौजूदगी में अगर इजाजत हो तो मैं भी कुछ लबकुशाई करूं। गैबदा नबी ने फरमाया बोलो मीकाईल तुम क्या कहना चाहते हो। ए मेरे आका मैदान महशर कायम होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, सर के ऊपर सूरज होगा, जिस तरह पतीली में पानी खौलता है इस तरह लोगों के भेजे खौलते हुए नजर आ रहे होंगे। प्यास इस कदर की होगी कि लोगों की ज़बानें सूख कर बाहर निकल आएंगी। गैबदा नबी ने इरशाद फरमाया मुझे मालूम है, कहना क्या चाहते हो मीकाईल। मीकाईल फिर मेरे आका के कदम को चूमते हैं और अर्ज करते हैं मेरे आका इन तीनों फरिश्तों की मौजूदगी में मैं ये वादा करता हूँ कि जो आपसे मोहब्बत करने वाला होगा, जो आपकी बारगाह में दुरूद पाक कसरत से पढ़ने वाला होगा, उस परेशानी के वक्त अपने हाथों से उसे हौज़े कौसर का पानी पिलाऊंगा। सुभान अल्लाह। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम जो बैठे थे उन्होंने जब देखा कि इन दोनों फरिश्तों ने अपने अपने मन की बात कह डाली, अर्ज करते हैं गैबदा नबी हुक्म दें तो मैं भी कुछ लबकुशाई करूं। अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया, हाँ बताओ इसराफील तुम क्या कहना चाहते हो। कहे मेरे आका कयामत के दिन जब बेटा अपने बाप को देखकर रास्ता बदलता हुआ नजर आएगा, वो बीबी जो जिंदगी में साथ में निभाने का वादा करती थी, जीने मरने की कसमें खाया करती थी, लेकिन कयामत के दिन वो अपने शौहर के करीब जाएगी नहीं, अनजान बन जाएगी, कोई किसी के काम आने वाला नहीं है, सबको अपनी अपनी फिक्र लाहिक होगी, सब अपनी अपनी परेशानी में मुब्तला होंगे। अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया इसराफील तुम कहना क्या चाहते हो। ए मेरे आका मैं वादा करता हूं कि जो आपकी बारगाह में कसरत से दुरूद पाक का तोहफा पेश करने वाला होगा उसकी बख्शिश के लिए खुदा की बारगाह में मैं अपने सर को झुका दूंगा, रोऊंगा, गिड़गिड़ाऊंगा जब तक अल्लाह ताला उसके सारे गुनाहों को माफ करके जन्नत नहीं देगा, मैं अपने सर को सजदे से नहीं उठाऊंगा। सुभान अल्लाह। अब हजरत इज़राइल, कौन इज़राइल जिन्हें हम और आप मलकल मौत कहते हैं, इन्होंने तीनों फरिश्ते के चेहरों को देखा, फिर आकाए करीम के कदम मुबारक को चूमा। ए मेरे आका मैं भी कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। हाँ बोलो मलकल मौत तुम क्या कहना चाहते हो। कहा अल्लाह के प्यारे नबी जो आपसे मोहब्बत करने वाला होगा जब उसके मरने का टाइम होगा तो उसकी रूह बड़ी आसानी से निकालूंगा, जैसे मलकल मौत ने कहा। गैबदा नबी ने कहा रुक जा फरिश्ता ये बता तो लोगों की रूह किस तरह कब्ज करता है। कहा ए मेरे आका जैसे पतला बारीक कपड़ा हो और कांटादार पेड़ हो, उस कांटेदार पेड़ पर बारीक कपड़ा रेशमी डाल करके खींचा जाए तो उसका तागा तागा अलग हो जाता है, रेजा रेजा हो जाता है, पुर्जा पुर्जा हो जाता है, वो कपड़ा तार तार हो जाता है। इसी तरह जब लोगों को जिस्म से रूह निकालता हूँ, लोगों को जिस्म से उनकी जान को निकालता हूँ तो उसका जिस्म चूर चूर हो जाता है। लेकिन इन फरिश्तों की मौजूदगी में आज मलकल मौत मेरे आका वादा कर रहा है कि जो आपकी बारगाह में कसरत से दुरूद पाक पढ़ने वाला होगा उसके जिस्म से रूह ऐसे निकालूंगा जैसे उसे एहसास तक ना होगा, जैसे फूल से खुशबू निकल जाया करती है। ए मेरे प्यारे आका हुसैन के दीवानों, इस हदीस पाक को निगाहों में रख करके आगे से पीछे दाएं से बाएं सारे लोग मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ो तो बात आगे बढ़ाऊं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना हबीबना करीमना मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैका सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह
सलातुम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। आज मुहर्रम उल हराम की पहली तारीख है और ये दूसरा प्रोग्राम है। कल आप हज़रात ने शहादत के बारे में सुना। आज मेरी तकरीर का उन्वान है रिसालत, यानी अल्लाह के प्यारे नबी दुनिया में तशरीफ़ लाए, हालात ज़िंदगी तुम्हें सुनना है, किस तरह गैबदा नबी दुनिया से रूपोश हो गए, बज़ाहिर हमारे निगाहों से किस तरह कूच कर गए, ये सारे हालात हमको और आपको सुनना है। ए मेरे प्यारे आका हुसैन के दीवानों, आका हुसैन की महफिल में आने वालों, आज रिसालत का बयान सुनो। कल इंशाअल्लाह सदाकत का बयान किया जाएगा, जो मुहर्रम में बयान करने का तरीक़ा है। आप हज़रात से कल भी मैंने कहा था कि टाइम से आ जाओ, टाइम से जलसा शुरू हो जाए, ताकि कम वक्त में ज़्यादा बातें आप हज़रात को सुनने का मौका मिल जाए। खैर मेरे भाई, हमारा कहना काम है, मानना न मानना आपका काम है। जब इमाम साहब की बात नहीं माने तो मैं तो मेहमान हूँ, मेरी बात आप क्या मानेंगे। बहरहाल आओ, बारगाह बरेली में लेकर के चलता हूँ, आला हजरत की बारगाह में लेकर के चलता हूँ। सरकार इमाम अहमद रजा खान बारगाह रिसालत में अर्ज करते हैं, ओ मेरे प्यारे आका, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, आका बने दो जहां तुम्हारे लिए, आका बने दो जहां तुम्हारे लिए। इसी कलाम में आगे चलकर हम सुन्नियों के जान इमाम अहमद रजा खान फाज़िले बरेली रहमतो रिज़वान अर्ज करते हैं, खलीलो नजी मसीहो सफ़ी सभी से कहीं न बनी। खलीलो नजी मसीहो सफ़ी सभी से कहीं न बनी। इस बेखबरी में खल्क फिरी, आका कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए। आओ इसकी तशरीह करता हूँ 2-3 मिनट में। अल्लाह के प्यारे नबी की हदीस पाक जब सरकार आला हज़रत के निगाहों से गुजरती है तो गैबदा नबी के आशिक हज़रत इमाम अहमद रजा खान पुकार करके कह देते हैं, खलीलो नजी मसीहो सफ़ी सभी से कहीं ना बनी। मतलब क्या है, मकसद क्या है कि जब क़यामत का दिन होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, कोई किसी की मदद करने के लिए तैयार ना होगा, लोग पसीनों में डुबकियां खा रहे होंगे। यार आज जरा सी गर्मी लगती है तो हम और आप बेचैन हो जाते हैं, जरा सा पसीना आता है तो हम और आप तड़प जाया करते हैं। मैदान महशर की गर्मी सुनो, किस तरीके से पसीना आएगा, किसी के टुकने तक, किसी के घुटने तक, किसी के कमर तक, किसी के सीने तक। कुछ ऐसे लोग भी मैदान महशर में होंगे जो पसीनों में शराबोर होंगे, डुबकियां खा रहे होंगे। आधा दिन गुजर जाएगा, आधा दिन बाकी रह जाएगा, हम लोग बैठ करके मशवरा करेंगे, यानी अहले महशर आपस में बैठकर राय मिलाएंगे। कोई है ऐसा अल्लाह का बंदा जो इस परेशानी से छुटकारा दिला दे, जो इस मुसीबत से छुटकारा दिला दे। अहले महशर मशवरा करने के बाद कहेंगे चलो अपने बाप के पास चलते हैं, यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास चलते हैं। वो अपनी औलादों पर जरूर तरस खाएंगे और हमारी बख्शिश के लिए दुआ जरूर करेंगे, शफाअत जरूर करेंगे। सबके सब भागते हुए, दौड़ते हुए हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास पहुंचेंगे और कहेंगे हम सब आपकी औलाद हैं, आप हमारे लिए दुआ कर दें ताकि रब ताला इस परेशानी से हमें छुटकारा दे दे। हजरत आदम से लोग कहेंगे आप अल्लाह के खलीफा हैं, अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत से आपको पैदा फरमाया है, अल्लाह ने आपको खलीफा बना करके दुनिया में भेजा था। अल्लाह के प्यारे नबी आप दुआ कर दीजिए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे ओ मेरी औलादों, ओ मेरे बच्चों, ये बात हकीकत है, ये बात सच है कि अल्लाह ने मुझे अपना नाइब बनाया, अल्लाह ने मुझे अपना खलीफा बनाया, अपने दस्ते कुदरत से रब ने मुझे पैदा फरमाया, मगर आज के लिए नहीं। इज़हबू इला गैरी, आज हम तुम पर कोई तरस नहीं खा सकते, आज हम तुम्हारे लिए कोई दुआ नहीं कर सकते, हमको इतना पावर नहीं है कि तुम्हारी बख्शिश के लिए दुआ कर दें। वहां से जवाब मिलेगा। सारे लोग भागते हुए हजरत मूसा कलीमुल्लाह के पास पहुंचेंगे और कहेंगे ए अल्लाह के नबी आप तो डायरेक्ट अल्लाह से बात कर लिया करते थे, अल्लाह आपकी बात को मानता है, अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दें ताकि इस मुसीबत से रब ताला हमें छुटकारा दे दे।
حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں گے اذهبوا الی غیری، آج ہم تمہارے کام نہیں آ سکتے ہیں۔ المختصر یوں سنو، تمام نبیوں کی بارگاہ میں سب جا کر کے تھک جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے۔ واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے، بالا حضرت کے کلام کی تشریح کر کے یہ عبد القادر خان بات آگے کو بڑھا دینا چاہتا ہے۔ سارے نبی تمام لوگوں کے پاس جا کر کے تمام انبیاء کرام یہی جواب دیں گے آج کے دن ہم تمہاری مدد نہیں کر سکتے ہیں۔ آخر میں حضرت عیسیٰ روح اللہ کے پاس پہنچیں گے اور قدم پہ گر جائیں گے، اے اللہ کے پیارے نبی، اللہ نے آپ کو وہ طاقت دی تھی کہ ٹھوکر مارتے تھے مردہ زندہ ہو جاتا تھا، آپ کو اللہ نے وہ طاقت دی تھی کہ کوڑھی کے جسم پر اور نابینا کے جسم پر ہاتھ پھیر دیتے تھے، اللہ تعالیٰ آنکھ دے دیتا تھا، کوڑھپن دور کر دیتا تھا، جسم سے بیماری بھاگ جایا کرتی تھی۔ آپ اللہ کے بہت قریبی ہیں، اللہ آپ کی بات کو ضرور مانے گا۔ آپ دعا کر دیں کہ رب تعالیٰ ہم لوگوں کو اس پریشانی سے چھٹکارا دے دے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ کہیں گے یہ سب معجزہ اللہ نے تو مجھے عطا کیا تھا، مگر اذهبوا الی غیری، آج ہم تمہاری مدد نہیں کر سکتے ہیں۔ اب اہل محشر قدم کو چھوڑیں گے نہیں۔ اے عیسیٰ روح اللہ، آپ ہماری بخشش کے لیے دعا کر دیں، اگر دعا نہیں کریں تو کم از کم دعا کرنے والا کا پتہ بتا دیں، کون ہمارے کام آج آ سکتا ہے۔ تب حضرت عیسیٰ روح اللہ سر کو گھمائیں گے اور ارشاد فرمائیں گے وہ دیکھو عرش اعظم کے نیچے اس وقت حضرت امام حسن امام حسین کے نانا یعنی ہمارے تمہارے آقا غیب داں نبی خاتم پیغمبرہ کو رب تعالیٰ اپنی شایان شان کے لائق اونچے مقام پر بٹھائے ہوئے ہوگا۔ عیسیٰ روح اللہ اشارہ کریں گے آج تمہارے کوئی مدد نہیں کر سکتا، آج تمہارے کوئی کام نہیں آ سکتا، ہاں اگر تمہیں بخشش کا پروانہ چاہیے، اگر تمہیں بخشش کرانا ہے تو وہ چلے جاؤ محمد عربی کی بارگاہ میں، ان کے علاوہ تمہاری کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ اہل محشر روتے چلاتے گرتے پڑتے اٹھتے اور بھاگتے ہوئے آقا کریم کے پاس پہنچیں گے اور غیب داں نبی سے عرض کریں گے اے حسن حسین کے نانا، اے میرے آقا ہماری بخشش کے لیے دعا کر دیں۔ غیب داں نبی جب اتنا سنیں گے تو میرے آقا مسکرانے لگیں گے، سبحان اللہ بول دو، تم بھی مسکرا کے بول دو یار سبحان اللہ۔ جب کوئی بندہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیتا ہے، رب اتنا خوش ہو جاتا ہے اس بندے سے کہ اس کے نام کا ایک کھجور کا پیڑ رب تعالیٰ جنت میں لگا دیتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے آقا اہل محشر کو دیکھ کر کے مسکرائیں گے اور ارشاد فرمائیں گے انا لہا آؤ آؤ میں تیار ہوں میں تیار ہوں۔ جب اس حدیث پاک پر نگاہ ہم سنیوں کے جان کی پڑتی ہے تو پکار اٹھے، جب میرے آقا کہیں گے میں تیار ہوں تو اہل محشر یعنی ہم لوگ آقا سے کہیں گے او میرے آقا خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی، ذرا بچڑ کے بولو سبحان اللہ۔ خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی، اور اس بے خبری میں خلق فری آقا کہاں سے کہاں تمہارے لیے، کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ اے میرے آقا حسین کی محفل میں آنے والوں، کون حسین؟ وہ حسین جنہوں نے امام الانبیاء کی گردن پہ سواری کی ہے، یہ وہ آقا حسین ہے جو میرے آقا کریم بے حد بے پناہ محبت کیا کرتے تھے، یہی وہ پیارے آقا حسن اور حسین ہے۔ 6 سال اور 7 سال کی عمر حضرت امام حسن امام حسین کی ہے۔ مولا کائنات شیر خدا میرے آقا کے داماد حضرت مولا علی مسجد نبوی میں نماز پڑھ کر کے گھر کے اندر جاتے ہیں، اور جانے کے بعد کیا دیکھا؟ میرے آقا کی بیٹی خاتون جنت کا چہرہ اترا ہوا ہے، خاتون جنت کی آنکھوں میں آنسو بھرا ہوا ہے۔ مولا علی نے ارشاد فرمایا اے میرے آقا کی پیاری بیٹی، اے حسن حسین کی اماں، کس
किस चीज ने तुम्हारे आंखों को नम कर दिया है, क्या वजह है जो तुम्हारा चेहरा मुरझाया हुआ है। खातून जन्नत ने कहा, ए मेरे माँ बहनों और मेरे भाई, तुम भी औलाद वाले हो, जरा गौर करो। हजरत खातून जन्नत ने इरशाद फरमाया, ए शेर खुदा, बहुत देर से मैं बच्चों का इंतजार कर रही हूँ। दोनों बच्चे घर से निकले थे, खेलते हुए गए थे, पता नहीं दोनों बच्चे कहाँ चले गए। औलाद वाले हो प्यारो, गौर करो, माँ की ममता मचल रही है, हसन हुसैन को देखे बगैर रह नहीं पा रही है। इरशाद फरमाती है, अली बहुत देर हो गए, मेरे बच्चे अभी लौट करके नहीं आए हैं, जरा तलाश करो। मौला अली ने सीने से लगाया खातून जन्नत को और कहा, ओ मेरी प्यारी शरीके हयात, घबराने की बात नहीं है, परेशान होने की बात नहीं है। मदीने की गली में कहीं बच्चे खेल रहे होंगे, आप इतना मायूस क्यों होती हो? मैं जा रहा हूं, अभी हसन और हुसैन को तलाश करके लेकर के आता हूं। शेर खुदा निकलते हैं, मदीने की गली गली में तलाश करते हैं। हसन हुसैन 6 साल और 7 साल की उम्र है, दोनों बच्चों का कोई पता नहीं चला। शेर खुदा परेशान हो जाते हैं, आसमान की तरफ निगाह उठा करके अर्ज करते हैं, हे पालनहार, मेरी बीबी परेशान है। खातून जन्नत की आंखों में आंसू आ गए हैं, बच्चों की मोहब्बत में उनके आंखों में आंखों से आंसू छलकने वाला है। ए पालनहार, मेरे दोनों बच्चे कहां गए हैं? ये कहते हैं और फिर सर झुकाए हुए सीधे घर चले आते हैं। मां ने पूछा, अली क्या हुआ? मेरे लाल मिले नहीं मिले, मेरे बच्चों का कोई पता चला? मां की ममता मचल रही है, मां परेशान है, थोड़ा ही वक्त गुजरा है, अपने दोनों नूरे नजर को ना देखा तो मां इस तरीके से परेशान हाल है। शेर खुदा ने कहा, ए खातून जन्नत, मैंने भी मदीने की गली गली में आपके दोनों बच्चों को तलाश कर लिया, मगर बच्चों का कोई पता नहीं चला। मियां बीबी दोनों आपस में बात ही कर रहे थे, शेर खुदा और खातून जन्नत बात ही कर रहे थे कि हसन हुसैन के नाना हमारे तुम्हारे आका तशरीफ लाते हैं और तशरीफ ला करके इरशाद फरमाते हैं, अली क्या बात है, बहुत परेशान मालूम होते हो। ए मेरी फातिमा बेटी, बता आखिर क्या मामला है? हजरत फातिमा ज़हरा आका करीम के सीने से लग करके रोने लगी, अब्बा जी काफी देर हो गई, काफी अरसा गुजर गया, मेरे दोनों बच्चे मदीने की गली में गए थे, खेलने की गरज से घर से निकले थे, अभी तक वो बच्चे पलट कर नहीं आए। अली पूरा मदीना छान मारा है, अली मदीने की गली गली में तलाश कर चुके हैं, मगर बच्चों का कोई पता नहीं है। माँ माँ हुआ करती है प्यारो, तुम भी औलाद वाले हो, जरा गौर करना, माँ की ममता मचल रही है। खातून जन्नत के आंखों से आंसू के सैलाब बह निकलते हैं, नबी बावकार के भी आंखों में आंसू आ गए। मेरे आका आसमान की तरफ निगाह उठाते हैं, इतने में हजरत जिब्रील अमी हाजिर हो जाते हैं और आका करीम के गोरे गोरे तलवों को चूम करके अर्ज करते हैं, अल्लाह के प्यारे नबी, आप घबराएं नहीं, आप परेशान ना हो, खातून जन्नत से कह दें कि बिल्कुल परेशान ना हो, मायूस ना हो, अली शेर खुदा को समझा दे कि वो गमगीन ना हो। कहा क्या मतलब, मेरे दोनों नवासे कहाँ हैं? कहा, ए मेरे आका, गर्मी का मौसम है, दोनों बच्चे खेलते खेलते मदीने से बाहर चले गए, खजूरों के बाग में थोड़ी देर तक खेलते हैं, फिर खजूरों के बाग से आगे चले जाते हैं, मैदान के अंदर पहुंचते हैं, गर्मी का मौसम है, धीमी धीमी भीनी भीनी हवाएं चल रही है, हवाओं का झोंका लगता है, दोनों बाप के दोनों नवासे जमीन पर लेटना चाहते हैं, नींद का झोंका आ जाता है, नींद की देवी मुसल्लत होना चाहती है कि रब ने फौरन फरिश्तों को हुक्म दिया, ए फरिश्तों तुम देख रहे हो मेरे नबी के नवासे जमीन पर आराम करना चाहते हैं। तो ये मेरे प्यारे आका, रब ने 2 फरिश्तों को भेजा और उनसे रब ने इरशाद फरमाया, दोनों फरिश्ते अपने परों को बिछाकर हसन हुसैन को आराम से सुला दें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए मेरे आका, आप घबराए नहीं, रब ने 2 फरिश्तों को और भेजा और कहा, जा, एक फरिश्ते की ड्यूटी रब ने लगाई कि हसन हुसैन के ऊपर साया कर ले ताकि धूप न पड़ सके, और तीसरे और चौथे फरिश्ते से रब ने इरशाद फरमाया, तू अपने परों से पंखा झलना शुरू कर दे। ए मेरे आका, आपके दोनों नवासे बड़े मस्ती में सो रहे हैं, बड़े आराम का बहुत मस्ती में सो रहे हैं, बहुत आराम से नींद की मीठी आगोश में जा चुके हैं। और ए मेरे प्यारे आका, आसमान के फरिश्ते सब आपके नूरे नजर की ज़ियारत कर रहे हैं, हसन हुसैन के दिका दीदार कर रहे हैं। मौला अली को मेरे आका ने बुलाया, अली फला जगह पर चले जाओ। जिब्रील अमी फिर कदम को चूमते हैं, ना ना मेरे आका, अभी अली को मत भेजा जाए, रब का फरमान हो चुका है, आसमान के फरिश्ते ज़ियारत करने में लगे हैं, जब तक सारे फरिश्ते आपके नवासों की ज़ियारत ना कर लें उस वक्त तक बुलाना नहीं। बच्चों को कह दीजिए मचल करके सुभान अल्लाह। काफी अरसा के बाद
जिब्रील ने अर्ज किया, हाँ मेरे आका, अब अली को भेजा जाए। अली जाते हैं, क्या देखा, दोनों बच्चे मस्ती में सो रहे हैं, बच्चे हैं, बच्चों को उठा करके लेकर के आते हैं। ये हसन हुसैन का मर्तबा है, ये वो हसन हुसैन की अजमत है कि जिब्रील अमी जैसा फरिश्ता आपके झूले को झुलाए, जिब्रील अमी आपके घर की नौकरी करे, जिब्रील अमी जैसा फरिश्ता मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे के लिए जन्नत से मेवे और फल लेकर के आए। ये वो हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन हैं जिनसे फरिश्ते इतना प्यार करते हैं, नबी बावकार इतना प्यार करते हैं, तो खुदाए वहदहू ला शरीक कितना प्यार करता होगा। इसी पर बस नहीं मुसलमानों, बल्कि हम भी औलाद वाले हैं, आप भी औलाद वाले हो। गौर कीजिए, गैब दा नबी हुजूर सरवरे सरवरा अनीसे बेकसा रहमतुल्लिल आलमीन जब फातिमा ज़हरा के मकान से गुजरते थे ना, अगर हसन हुसैन के रोने की आवाज मेरे आका के कान में पड़ जाती थी तो मेरे आका रास्ता बदल करके सीधे फातिमा के घर जाते थे और अपनी बेटी फातिमा को समझाते थे, ए मेरी लखते जिगर, ए मेरी नूरे नजर, ए मेरी बेटी फातिमा, हसन हुसैन को रोने न दिया करो, इसलिए कि जब ये बच्चे रोते हैं ना तो तुम्हारे बाप के दिल को तकलीफ होती है। अल्लाहु अकबर कबीरा। वो गैब दा नबी मेरे आका हुसैन और हसन से इस तरह मोहब्बत करते हैं। इसी पर बस नहीं, बल्कि बात आई है तो सुनते चलो। रमजान शरीफ का महीना है, 29 रमजान है, चांद नमूदार हो जाता है। हसन हुसैन की उम्र 7 साल और 6 साल की गालिबन बताई जाती है। प्यारे आका हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु और प्यारे आका हसन खातून जन्नत के कदमों पे गिर जाते हैं। अम्मी जान, मदीने की गली से हम लोग गुजर रहे थे, हमारे दोस्तों ने बताया, हमारे साथियों ने बताया कि आज ईद का चांद नजर आने वाला है, कल को सुबह ईद है। हमारे अब्बा ने बहुत रेशमी कपड़ा मेरे लिए इंतजाम किया है, अच्छे अच्छे कपड़ों का इंतजाम किया है। अम्मी जान, हमें तो नहीं लगता है कि आपने शायद कोई कपड़ों का इंतजाम किया हो। खातून जन्नत खामोशी के साथ सुन रही है सारी बातें। इमाम हसन पूछते जा रहे हैं, इमाम हुसैन पूछते जा रहे हैं। इतने में हजरत इमाम हुसैन की जबान से एक बात निकल जाती है, ए भाईजान, क्यों माँ को तंग कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं है हमारे कपड़े दर्जी के घर गए हैं, है ना अम्मा? हजरत इमाम हुसैन माँ की तरफ इशारा करते हैं, है ना अम्मा? हसन हुसैन सामने मौजूद हैं। प्यारे हुसैन बोलते हैं, अम्मी जान बताइए ना, हमारे कपड़े दर्जी के घर है ना? खातून जन्नत के लब पर खामोशी का पहरा। अब कहें तो क्या कहें, अगर ना करती है तो बच्चों का दिल टूट जाएगा, और नबी ने फरमाया है बच्चों के आंखों में आंसू आ गए तो मेरे दिल को तकलीफ होगी। खातून जन्नत खामोश हैं। प्यारे आका हुसैन 6 साल की उम्र है, अर्ज करते हैं, अम्मी जान बताइए ना, क्या मेरे कपड़े दर्जी के घर हैं? तीसरी मर्तबा जब आका हुसैन पूछते हैं, खातून जन्नत ने सर को हिला दिया। भैया हुसैन मुस्कुराने लगे और कहते हैं, भैया हसन देखो देखो, मैंने कहा था ना कि हमारे कपड़े दर्जी के घर हैं, परेशान ना हो, सुबह नमाज ईद से पहले पहले हमारे कपड़े सिल करके आ जाएंगे। इस तरीके से दोनों भाई आपस में बातें करते हैं और जाकर के बिस्तर पर लेटते हैं। हमारा बच्चा हो या आपका बच्चा हो, बच्चों को ईद की खुशी बहुत होती है। चांद ईद का नजर आ जाए तो बच्चों को रात भर नींद नहीं आती है, बच्चों को रात भर नींद नहीं आती है। क्यों? सुबह ईदगाह जाएंगे, अपने बाप के साथ जाएंगे या अपने भाई के साथ जाएंगे। ईदगाह जाऊंगा क्योंकि ईद का चांद नजर आ गया है, सुबह हमें नहा धोकर अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर ईदगाह जाना है। हर बच्चों की यह ख्वाहिश होती है, हर बच्चों की यह तमन्ना होती है। प्यारे आका हसन और हुसैन जाकर के बिस्तर पर लेटते हैं और आपस में दोनों भाई बात करने लगते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। इधर मेरे आका की लखते जिगर खातून जन्नत फातिमा ज़हरा के आंखों से सावन भादों की तरह पानी गिरने लगा। सावन भादों की तरह खातून जन्नत की आंखों से आंसू रवा हो जाते हैं। आसमान की तरफ निगाह उठा करके देखती है, ए मौला बेशक तू दिल की धड़कनों को जानने वाला है, मौला तुझसे कोई राज छुपी नहीं, मौला तू बखूबी जानता है। अब बच्चों ने मुझसे वादा करा लिया है, मौला अब मैं क्या करूं? सुबह को अगर मेरे लाल को नए कपड़े ना मिले तो मेरे बच्चों का दिल टूट जाएगा, मैं अपने बच्चों की निगाह में गिर जाऊंगी। ये अर्ज करती है और मुसल्ला लेती है, बिछा देती है खुदा की बारगाह में। रात भर नमाजें पढ़ती रही, दुआ करती रही, रात भर दुआ मांगती रही, मौला
अपने नबी की बेटी की लाज रख लेना। मौला अपने आका मेरे आका की मौला अपने प्यारे नबी के बेटी को रुसवा ना होने देना। बच्चों की निगाह में माँ है, माँ ममता मचल रही है, खुदा की बारगाह में रो रो करके दुआ करती है। दोनों हसन और हुसैन आराम कर रहे हैं मगर नींद नहीं आ रही है बच्चों को। क्यों? ईद की खुशी में सुबह दर्जी कपड़ा लेकर के आएगा, नए नए कपड़े पहन करके हम नाना के साथ जाएंगे, ईदगाह जाएंगे, मेला घूमने की गरज से जाएंगे। हसन हुसैन को नींद नहीं आ रही है। उधर खातून जन्नत मुसल्ला बिछाए हुए खुदा की बारगाह में रो रो करके गिड़गिड़ा करके दुआ करती है, मौला तेरे रसूल के बेटी हसन हुसैन का सदका मांगती है, मौला अता कर दे वरना बच्चों का दिल टूट जाएगा। इस तरीके से माँ की ममता मचलती है और रो रो करके दुआ करती है। फजर की आजान की आवाज कान से टकराती है, फजर की आजान हो जाती है। हजरत बिलाल ने आजान देना शुरू कर दिया। दोनों बच्चे जाग ही रहे थे, जल्दी से उठते हैं, माँ की तरफ दौड़ते हैं। माँ से पूछ लिया जाए कि दर्जी आया कि नहीं कपड़ा लेकर के। माँ की तरफ कदम को बढ़ाया ही था, तब तक दरवाजे पर दस्तक हो जाती है। दोनों बच्चे रास्ता बदल कर दरवाजे की तरफ जाते हैं। जल्दी से दरवाजा खोला, क्या देखा? सामने इंसानी शक्ल में वह दहकल जो है इंसानी शक्ल में एक इंसान खड़ा है, दोनों हाथों में उसके थैला है। दोनों बच्चों ने कहा तू मेरा दर्जी है, मेरे घर का दर्जी है? कहा का हुसैन हम तुम्हारे घर के गुलाम हैं, हम तुम्हारे घर के भिखारी हैं, हम तुम्हारे दर्जी हैं, हम तुम्हारे लिए कपड़ा लेकर के आए हैं। उधर दोनों बच्चों ने हाथ से थैला छीना और जल्दी से माँ के पास पहुंचे और कहा अम्मी जान सर को सजदे से उठा लीजिए, हमें नहला धुला दीजिए, तैयारी करा दीजिए, सुबह की सफेदी नमूदार होने वाली है, हम नाना के साथ ईदगाह जाएंगे। ये देखो दर्जी कपड़ा लेकर के आ गया। अल्लाहु अकबर कबीरा। खातून जन्नत ने देखा तो बेहतरीन कपड़ा, ऐसा कपड़ा जो मदीने के बादशाहों के बच्चों ने भी नहीं पहना था, दुनियावी कपड़ा नहीं था, वो जन्नती कपड़ा था। हजरत खातून जन्नत बच्चों कपड़ों को देखती हैं उलट पुलट कर, तब तक गैबदा नबी तशरीफ लाते हैं, मेरे प्यारे आका तशरीफ लाते हैं और आकर के इरशाद फरमाते हैं, मेरी बेटी फातिमा क्या मामला है? बच्चों का कपड़ा आ गया? हाँ बाजी कपड़ा तो आ गया। मेरे आका कपड़े को लेते हैं, बड़ा बेहतरीन कपड़ा है, बड़ा कीमती कपड़ा है, बड़ा कीमती लिबास है। फातिमा कहाँ से आया? ए मेरे आका मुझे पता नहीं कहाँ से आया, कौन आया, कौन दे करके गया? तब मेरे आका मुस्कुराते हैं और कहा ए मेरी बेटी फातिमा तुम्हें पता नहीं है, ये दुनियावी कपड़ा नहीं है बल्कि ये जन्नती कपड़ा है। और तुम्हारे घर का जो दर्जी बन करके आया था वो कोई दुनिया का इंसान नहीं बल्कि जिब्रील अमी था। सुभान अल्लाह बोल दो। जिब्रील अमी था, सबसे बड़ा फरिश्ता था जो हसन हुसैन का गुलाम बन करके दर्जी बन करके आया है। ये वो आका हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अजमत है मेरे भाई, ये वो आका हुसैन की मुकद्दस और बाबरकत महफिल है। कहने का मतलब ये है आज मेरी तकरीर का मौजू है रिसालत, यानी मेरे प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश और हालात जिंदगी और वफात तक आप हज़रात को सुनना है। कम टाइम में ज्यादा बातें बताने की कोशिश करूंगा। आओ जायजा लो, आज से 1444 बरस पीछे चलो, इस दुनिया का जायजा लो। अरबिस्तान से लेकर हिंदुस्तान तक हर तरफ गुमराही छाई हुई थी। ये हिंदुस्तान जहां हम चैन और सुकून की सांस लेकर के अपने जीवन को बिता रहे हैं ना, इस हिंदुस्तान का यह हाल था कि चलते चलते अगर एक आदमी का कदम दूसरे आदमी से टकरा जाता तो तलवारें निकल आती थी। इतनी जाहिलियत हिंदुस्तान के अंदर भरी पड़ी थी। लुकमे पर लोग शराब पिया करते थे। और आओ इस हिंदुस्तान की तारीख पढ़ो तो पता चलता है जिंदा लड़कियों को जला दिया जाता था, अरबिस्तान में जिंदा लड़कियों को गाड़ दिया जाता था और हिंदुस्तान में जिंदा औरतों को जला दिया जाता था। ये अब्दुल कादिर खान हशमती एक एक बात का सबूत रखता है, कोई मनगढ़ंत कहानी और किस्सा नहीं सुना रहा है। आज भी हिंदुस्तान में वो जगह मौजूद है जहां जिसका शौहर मर जाता वो जवान लड़की को पति के साथ सती होना पड़ता था। राजस्थान की सरजमीन पर चलो, एक कस्बा उदयपुर है, वहां आज भी सती स्थल मौजूद है जहां औरतों को जिंदा शौहर के साथ जला दिया जाता था। अगर किसी जवान औरत का शौहर मर जाता, हिंदुस्तान की तारीख बताता हूं, तो उस औरत से पूछता जाता, देख अगर तू जिंदा रहना चाहती है तो बता, और अगर जिंदा नहीं रहना चाहती है तो बता। अगर वो जिंदा रहने के लिए राजी हो जाती
تو اس کو 6 مہینے کے لیے قید خانے میں ڈال دیا جاتا، کوئی نہ ملتا نہ جلتا، ضروریات زندگی کے کچھ کھانے وغیرہ پیش کیے جاتے، 6 مہینے کے اندر اگر مر جاتی تو فبیہا یعنی ٹھیک، اور اگر نہیں مرتی تو اسے نکالا جاتا، کالا کے چہرہ کیا جاتا، جانور پر بٹھایا جاتا، گلی گلی میں گھمایا جاتا تھا۔ یہ منحوس عورت ہے اس لیے اس کا مرد مر گیا، یہ منحوس عورت تھی اس لیے اس کا شوہر مر گیا۔ یہ ہندوستان کی تاریخ بتاتی ہے۔ المختصر یوں سنو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے اور انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کو ایک جانو، لوگوں اور بتوں کی پرستی چھوڑ دو، بتوں کو جو ہے پوجنا بند کر دو، تو حضرت عیسیٰ روح اللہ کے کچھ لوگ ماننے والے ہوئے تھے، لیکن کچھ تو ایسے تھے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں پر بھی تہمت لگا دیا تھا۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں حضرت مریم کو اللہ کی بیوی اور حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا تھا۔ بولو معاذ اللہ۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ کو اللہ کا بیٹا بتایا، ان کی ماں کو اللہ کی بیوی بتائی، جبکہ اللہ بیٹوں سے پاک ہے، اللہ بیوی سے پاک ہے، اللہ ہاتھ اور پیر سے پاک ہے، خود خدا ہے، وہ خود سے خدا ہے، خدا ایک نور ہے۔ جب اس طریقے سے الزام لگایا، اللہ اکبر کبیرہ، ہمارا اور عیسائیوں کا جھگڑا یہی ہے۔ ہمارا قرآن کہتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر ماں باپ، بغیر جو ہے باپ کے پیدا فرمایا ہے۔ ارے اللہ جب حضرت آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے تو کیا عیسیٰ کو بغیر باپ کے نہیں پیدا کر سکتا؟ بے شک پیدا کر سکتا ہے۔ اللہ قادر قدرت ہے، اللہ کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ لیکن میرے بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب ظالموں نے پھانسی دیا، یہ کمینے سمجھتے ہیں نا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو میں نے پھانسی دے دیا، نہیں بھائی نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی 40 سال ابھی ان کی نبوت دنیا میں ہونی، آخری پیغمبر تو میرے نبی ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی 40 سال ابھی وہ حکومت کریں گے، نبوت کریں گے دنیا کے اندر۔ کیونکہ جب ظالموں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کی پلاننگ بنائی، پھانسی دینے کی پلاننگ بنائی، تو ایک آدمی کو بھیجا، کہا جاؤ عیسیٰ کو پکڑ کر کے لاؤ۔ اللہ کی شان، ارے یار اللہ جسے رکھے اسے کون چکھے؟ اللہ جس کا نگہبان ہو۔ واقعہ تو بہت لمبا ہے لیکن میں واقعہ بیان نہیں کروں گا کیونکہ رسالت کا بیان تمہیں سننا ہے۔ جب وہ انسان بلانے گیا جس مکان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، چھت پھٹی، اللہ نے اپنے نبی عیسیٰ روح اللہ کو آسمان پر اٹھا لیا، چوتھے آسمان پر آج بھی عیسیٰ روح اللہ موجود ہیں۔ اب جو بلانے گیا تھا نا اس کا چہرہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہو جاتا ہے، لوگ اسی کو پکڑتے ہیں اور پھانسی دے دیتے ہیں۔ یہ ظالم سمجھتے ہیں عیسیٰ روح اللہ کو میں نے لٹکایا، نہیں نہیں، میرا قرآن کہتا ہے، قرآن کا فتویٰ ہے، نبی کی حدیث پاک ہے کہ عیسیٰ روح اللہ چوتھے آسمان پر موجود ہے، اور جب قریب قرب قیامت ہوگا یعنی 40 سال رہ جائیں گے قیامت آنے کو، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے پوربی مینار سے اتریں گے اور 40 سال تک حکومت کریں گے۔ اس کے بعد قیامت آئے گی، پھر کانا دجال آئے گا وغیرہ وغیرہ۔ خیر کہنے کا مطلب یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 500 برس تک کوئی نبی نہیں آیا۔ اب بتاؤ جب 500 برس تک کوئی نبی نہیں آئے گا، اچھا راستہ بتانے والا نہیں آئے گا، تو قوم کتنی گمراہ ہو جائے گی؟ کوئی اندازہ نہیں، بہت گمراہ ہو جائے گی قوم۔ 500 برس تک جب کوئی نبی نہیں آیا، پھر یہ اللہ کا کرم دیکھو، اپنا شاندار جاندار ایماندار دھرم دیکھو۔ ربیع الاول شریف کے مہینے میں غیب داں نبی حسن حسین کے نانا کو پیدا فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا جب پیدا ہوئے، آپ ربیع الاول شریف میں اکثر سنا کرتے ہیں میرے پیارے آقا کے آنے سے دنیا میں اجالا پھیلا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ماں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب میرا بیٹا پیدا ہوا میں نے اسے گود میں لیا، گود سے میرا لال نیچے اترا اور اپنی زبین نبوت کو فرش خاک پر رکھا۔ جب سجدے میں میرے بچے نے سر کو رکھا، میں نے غور کیا یہ بچہ پیدا ہوتے ہی اپنے سر کو سجدے میں کیوں رکھا ہے۔ حضرت آمنہ بیان کرتی ہیں، آقا کریم کی اماں بیان کرتی ہیں کہ میں نے غور سے دیکھا تو میرے بچے کے دونوں ہونٹ ہل رہے تھے۔ آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کان کو قریب کیا تو میرا بچہ کہہ رہا تھا یا
रब्बी हबली उम्मती, या रब्बी हबली उम्मती। ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को जन्नत दे दे, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को हिबा फरमा दे, ऐ मौला मेरी उम्मत को बख्श दे। अल्लाह के प्यारे नबी दुनिया में तशरीफ लाए, हसन हुसैन के नाना तो हम गुनहगारों को याद किया और पूरी जिंदगी हमको और आपको जन्नत दिलाने के लिए गैबदा नबी रोते रहे, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाते रहे, अल्लाह की बारगाह में दुआ करते रहे। अब सीने पे हाथ रखो, हुसैन की महफिल में आने वालों, मेरे प्यारे आका सारी जिंदगी हमको और आपको जन्नत दिलाने के लिए रोया करते थे। हम बताओ नबी की मोहब्बत में कभी एक आंसू हमारे आंख से गिरा है? हमारी बीबी अगर मैके चली जाए ना तो बीबी की याद में आंखों से आंसू आ जाएंगे इमाम साहब, लेकिन कभी आका की याद में, आका की मोहब्बत में आंखों से आंसू नहीं बहे होंगे। अरे वो मेरे आका जो सारी जिंदगी हमारे और आपको जन्नत दिलाने के लिए रोते रहे। हम प्यारे आका से किस तरह मोहब्बत करते हैं, यहाँ तक कि मेरे आका जिस रास्ते से निकलते थे ना, लोग रास्ते में कांटे डाल दिया करते थे। मेरे आका जब सर को झुकाकर रब की इबादत करते थे, पीठ पर मेरे आका के ऊंट की वोझड़ी डाल दिया करते थे। अबू जहल, उतबा, शैबा, अबू लहब, अबू सुफियान ईमान लाने से पहले इन जालिम ये लोगों ने बहुत जुल्म किया था। अबू सुफियान भी जब ईमान नहीं लाए थे उससे पहले बहुत जुल्म किया मेरे आका पर। ए मेरे प्यारे आका करीम के दीवानों, मैदान उहुद में मेरे आका का जो है एक दंदाने मुबारक शहीद हुआ, नालैने पाक खून से तर हो जाता है। फिर सहाबे कराम ने अर्ज किया था, ए मेरे आका आप तो नबियों के नबी हैं, इनके खिलाफ बद्दुआ कर दें। और नबी जो होते थे ना बद्दुआ कर देते थे, उनकी बद्दुआ कबूल हो जाती थी। अल्लाह ने किसी नबी की उम्मत को बंदर बना दिया, किसी नबी की उम्मत को आंधी और तूफान में गर्क कर दिया। लोगों ने अर्ज किया, मेरे आका आप तो नबियों के नबी हैं, इन जालिमों ने आप पर पत्थर बरसाए हैं, आप भी इनके खिलाफ दुआ कर दें। अल्लाह के नबी ने कहा, ठीक है, अगर तुम लोग कहते हो तो मैं हाथ उठाता हूं। अल्लाह के प्यारे नबी हाथ उठाते हैं तो गैबदा नबी ये नहीं कहते कि मौला इन्हें तबाह कर दे, मौला इन्हें बर्बाद कर दे, बल्कि मौला की बारगाह में अर्ज करते हैं, मेरे आका ओ पालनहार ये अनजान है, मौला मैं इन्हें माफ करता हूं, मौला तू भी माफ कर देना। ये वो प्यारे आका करीम है जो किसी के लिए बद्दुआ नहीं किया, किसी के खिलाफ दुआ नहीं किया। और कैसे खिलाफ दुआ करते, अल्लाह ने अपने नबी को तो रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा है। यही वो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं कि एक दिन मस्जिद नबवी में बैठे हुए जिब्रील अमी आए, कदम मुबारक को चूमा, अर्ज किया, ओ मेरे आका मैं जन्नत गया था, जन्नत की मैंने सैर की, जहन्नम को भी झांक कर देखा। अल्लाह के नबी फला नबी की उम्मत जहन्नम में जल रही है, अल्लाह के नबी फला नबी की उम्मत जहन्नम में जल रही है, ए मेरे आका फला नबी की उम्मत जहन्नम में जल रही है। तमाम नबी की उम्मतियों की बात जिब्रील अमी करते जा रहे हैं। फिर एक बैक लबे जिब्रील पर खामोशी का पहरा, जिब्रील बिल्कुल खामोश हो गए। यार मेरे आका कितनी मोहब्बत हमसे और आपसे फरमाते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया, जिब्रील क्यों खामोश हो गए? ए मेरे आका मैं क्या बयान करूं, ए मेरे आका मैं क्या कहूं? नहीं बता, क्या तूने मेरे उम्मतियों को जहन्नम में तो नहीं देखा? जिब्रील अर्ज करते, हाँ मेरे आका मैंने आपकी उम्मतियों को भी जहन्नम में जलते हुए देखा है। जैसे हसन हुसैन के नाना इतना सुनते हैं, अल्लाह के प्यारे नबी इतना सुनते हैं, मेरे आका की आंखों में आंसू आ गए, ज़ारो कतार रोने लगे। मेरे आका की बेचैनी बढ़ जाती है, मेरे आका की बेकरारी बढ़ जाती है। जिब्रील नबी के कदम को चूम कर वापस चले जाते हैं, मगर मेरे आका की बेकरारी बढ़ती जा रही है। मेरे आका मस्जिद नबी में लेटे हुए हैं, मुसल्ले से लिपटे हुए हैं, बड़ी देर तक रोते रहे। उसके बाद मेरे प्यारे आका मस्जिद नबवी से बाहर निकलते हैं, किसी से मिलते नहीं हैं, अपने दोस्त सिद्दीक़ अकबर से भी मुलाकात ना की, उमर फारूक आजम को से भी मुलाकात ना की, किसी से मिले नहीं। मेरे आका हुजरे आयशा में भी नहीं जाते हैं, मेरे आका बगैर बताए हुए मदीना को छोड़ देते हैं। अल्लाहु अकबर। इस तरह मेरे आका बेकरार होते हैं, इस तरह मेरे आका को का सुकून और चैन छिन जाता है कि मदीने को छोड़ दिया। अब थोड़ा वक्त
गुजरता है कि अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक आजम मस्जिद नबी में आते हैं, आका की तलाश जारी कर देते हैं, आका को तलाश करते हैं, आका नहीं मिले। हुजरे आयशा में देखा जाता है आका का कोई पता नहीं। सहाबे कराम धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे, आपस में सोचने लगे मेरे आका कहाँ चले गए हैं। मस्जिद नबी में देख लिया गया, हुजरे आयशा में देख लिया गया, चलो मदीने की गली में देखा जाए, शायद क्या मामला हुआ जो मेरे आका बगैर बताए कहीं चले गए, किसी से मिले नहीं है, क्या वजह हो गई, क्या मामला हो गया। सहाबे कराम मचल रहे हैं, सहाबे कराम परेशान है, मदीने की गली गली में आका को ढूंढा जा रहा है। एक दिन गुजर गया, आका का कोई पता नहीं। दूसरा दिन आ जाता है, आका के का कोई सुराग नहीं, आका का कोई पता नहीं चलता है। ए मेरे प्यारे आका ए करीम के दीवानों और आका हसन और हुसैन से मोहब्बत करने वालों, मदीने में कोहराम बर्पा हो गया, मदीने में क़यामत सुगरा नाजिल हो जाती है। लोगों के घर से धुआं उठना बंद हो जाता है, लोगों ने खाना पीना छोड़ दिया। माँ की गोद में जो बच्चे थे वो बिलक बिलक करके रोने लगे, अम्मी जान मेरे आका बगैर बताए हुए कहाँ चले गए हैं, मदीना को सूना कर दिया है। 3 दिन का अरसा गुजर गया, गैबदा नबी का कोई पता नहीं चला। मस्जिद नबी में सहाबे कराम बैठ करके मीटिंग करते हैं, बैठ करके मशवरा करते हैं, बैठ करके राय मिलाते हैं। आखिर आका करीम गए तो कहाँ गए। अबू बकर सिद्दीक ने कहा सुनो, अब मदीने में तलाश कर लिया गया, आका का कोई पता नहीं, चलो दूसरी आबादी में देखा जाए, पहाड़ों की तरफ आका को तलाश किया जाए, जंगलों की वादी में चल करके आका करीम को तलाश किया जाए। लोग चलते हैं और जाते जाते एक पहाड़ पर चढ़ते हैं तो क्या देखा, एक चरवाहा कुछ बकरियों को लिए हुए चरा रहा है। उस चरवाहे को सिद्दीक अकबर बुलाते हैं, सहाबे कराम आवाज देते हैं, वो चरवाहा करीब आया, कहा ये बताओ तुमने मेरे आका को देखा है। कहा कौन तुम्हारे आका। कहा हमारे आका जिनका हम कलमा पढ़ते हैं, जो मेरे अल्लाह के प्यारे नबी हैं। कहा जाओ जाओ अपना काम करो, हम 3 दिन से बहुत परेशान हैं, तुम लोग मुझे और परेशान करने आ गए। कहा क्या बात है, 3 दिन से क्यों परेशान हो। कहा हम परेशान इसलिए हैं कि हम तुम्हारे आका को जानते पहचानते नहीं हैं, लेकिन हम परेशान इसलिए हैं कि आज 3 दिन हुआ इन पहाड़ की खो के अंदर इतनी दर्द में कराहती हुई आवाज आती है, दर्द में रोते हुई आवाज निकलती है कि उस आवाज को सुन करके 3 दिन से मेरी बकरियों ने चरना बंद कर दिया है, मैं खुद परेशान हूँ, जाओ जाओ मुझे परेशान ना करो। सहाबे कराम ने कहा हो ना हो वो गैबदा नबी ही की आवाज होगी, वो गैबदा नबी ही की दर्द भरी आवाज सुनकर जानवरों ने चरना और खाना पीना बंद कर दिया है। सहाबे कराम कहते हैं वो आवाज किधर से आती है। कहा इधर ही से वो आवाज आती है। ए मेरे भाई हम इंसान हैं, इंसान, वो जानवर हैं, चौपाए हैं, वो नबी से किस कदर मोहब्बत करते हैं कि मेरे आका की दर्द भरी आवाज सुन करके बकरियों ने भी चरना खाना और पीना छोड़ दिया है। सहाबे कराम जाते हैं पहाड़ की खो के अंदर तो क्या देखा, वो मेरे आका अपने सर को सजदे में रखे हुए या रब्बी हबली उम्मती की रट लगाए हुए हैं। ए अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, ए अल्लाह मेरी उम्मत को जहन्नम से छुटकारा दे दे, ए मौला मेरी उम्मत को जन्नत अता कर दे। इस तरीके से रट लगाए हुए हैं सहाबे करम। सहाबे कराम जाते हैं और कदम मुबारक से लिपट जाते हैं। ए मेरे आका सर को सजदे से उठा लीजिए, मदीना तशरीफ ले चलिए, मदीने में कोहराम बरपा है, बच्चों ने खाना पीना बंद कर दिया है, हमारे घरों से धुआं उठना बंद हो गया है। मेरे आका सर को सजदे से उठाइए, चलिए मदीना तशरीफ ले चलिए, मदीने को आपने सूना कर रखा है। इस तरह लोग खुशामद कर रहे हैं, इस तरीके से लोग गिरिया वजारी करते हैं, मगर मेरे आका किसी की नहीं सुनते हैं। या रब्बी हबली उम्मती, ए अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, ए अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। किस कदर मेरे आका को प्यार है हमसे और आपसे। ए मेरे प्यारे आका हुसैन के दीवानों, चंद सहाबे कराम मदीना वापस आते हैं। खातून जन्नत हजरत इमाम हसन इमाम हुसैन की अम्मा से कहते हैं कि नबी का पता चल गया, हम लोगों ने बहुत खुशामद की, हम लोगों ने बहुत अरीजा पेश किया, हमारी मारूजा को नबी ने ना सुनी, चलो तुम चलो
हो, तुम नबी की लख्ते जिगर हो, खातून जन्नत हो, शायद तुम्हारी बात सुन करके आक़ाए करीम अपने सर को सजदे से उठा लें। खातून जन्नत के लिए पर्दे का इंतज़ाम किया जाता है, पर्दे का एहतिमाम किया जाता है। पर्दे में हो करके हसन हुसैन की अम्मा चली हैं अपने बाप को मनाने के लिए, अपने बाप को राज़ी करने के लिए खातून जन्नत पहुँचती हैं और कहा अब्बा जी अपने सर को सजदे से उठा लीजिए। आका कुछ नहीं सुनते, बस या रब्बी हबली उम्मती की सदा लगाए हैं। यार किताबों में मैंने पढ़ा है ना, जिस जगह मेरे आका अपने सर को रख करके रो रहे थे, आंखों से आंसुओं के सैलाब इस तरह बह रहे थे, एक नाली की शक्ल में पानी बहने लगा था। अल्लाहू अकबर कबीरा, इस बात को कहते हुए कलेजा दहल जाता है प्यारो, मगर कहना ही पड़ता है। मेरे आका के आंखों से इस तरह आंसू बह रहे हैं, क्यों? हमारे और आपके लिए। मेरे प्यारे आका करीम की बेटी अर्ज करती हैं अब्बा जी सर को सजदे से उठा लीजिए, मगर मेरे आका कुछ नहीं सुनते। हजरत फातिमा ने आखिरी बात कही, ए मेरे अब्बा जी अब अपने सर को आप सजदे से उठाइए और मदीना तशरीफ ले चलिए, वरना क़यामत कुबरा आने से पहले पहले अभी क़यामत सुगरा नाजिल हो जाएगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। खातून जन्नत इस तरह कहती हैं, तब भी मेरे आका ने अपने सर को सजदे से नहीं उठाया। तब खातून जन्नत अर्ज करती है अब्बा जी मेरे सर के बालों को आसमान ने भी नहीं देखा है, अब अपने सर को सजदे से उठा लीजिए, वरना आपकी बेटी सर के बालों को खोल देगी। और अगर फातिमा ने सर के बालों को खोल दिया तो अभी हश्र बर्पा हो जाएगा, अभी कयामत आ जाएगी। जब इतना मेरे आका सुनते हैं तो मेरे आका अपने सर को सजदे से उठाते हैं, आंसू बरस रहे हैं और सहाबे कराम से मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ओ मेरे जानिसार सहाबा अगर तुम लोग इतनी कोशिश ना करते तो मैं उस वक्त तक अपने सर को सजदे से न उठाता जब तक कि अल्लाह ताला से एक एक अपने उम्मती को बख्शवा न लेता। अल्लाहु अकबर। इस तरह मेरे आका कहते हैं और मदीना तशरीफ लाते हैं। अब मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात ज़िंदगी बयान करूं अगर तो कई दिन कई महीना कई साल लग जाएगा, नबी की हालात ज़िंदगी पूरी नहीं हो सकती। आओ मेरे आका का विसाल मुबारक समाअत फरमाओ। मेरे प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमाने वाले हैं। 63 साल की उम्र शरीफ है। गैबदा नबी के ऊपर बुखार की शिद्दत होती है, आपकी तबीयत खराब होती है, आप पर बुखार की शिद्दत होती है। ए मेरे प्यारे आका हुसैन के दीवानों, अगर तुम पर भी बुखार आए ना तो घबराया ना करो, बल्कि ये समझ लिया करो नबी की सुन्नत है बुखार आना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिस पर बुखार की शिद्दत होती है उसके गुनाह सगीरा माफ कर दिया जाता है, छोटे छोटे गुनाह झड़ जाया करते हैं। मेरे आका पर बुखार की शिद्दत है। मेरे प्यारे आका ने अपनी बीबी हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बुलाया। आयशा ज़रा इधर आना। हाँ मेरे आका ज़रा अपने अब्बा को बुला के लाओ। क्या बात है मेरे आका? का अबू बकर सिद्दीक को बुलाओ और जा कर के वो नमाज़ पढ़ाएं, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं इजाज़त देता हूँ कि अब अबू बकर सिद्दीक नमाज़ पढ़ाएं, मुसल्ले इमामत को संभालें। प्यारे आका की बीबी हजरत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अर्ज़ करती हैं कदम को चूम कर, हे मेरे प्यारे आका करीम मेरे अब्बा बड़े नरम दिल हैं, उनसे ये काम नहीं हो सकेगा। कहा जाओ बुला करके लाओ। खातून मेरे प्यारे आका करीम की बीबी हजरत अम्मा आयशा जाती हैं और हजरत अबू बकर को बुला के लाती हैं। हजरत अबू बकर ही की बेटी हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं। हजरत अबू बकर आए, आका के कदमों को चूमा, गोरे गोरे तलवों को बोसा लिया। हे मेरे आका फिदा का उम्मी वाबी, मेरे माँ बाप आपके कदमों पे निसार हो जाएं। ए मेरे आका इस गुलाम को क्यों याद किया है? कहा देखो नमाज का टाइम हो गया है, जाओ तुम नमाज पढ़ा दो। अल्लाहु अकबर। सर को झुकाए हुए हजरत अबू बकर सिद्दीक अब इनकार भी नहीं कर सकते, क्योंकि आकाए करीम का फरमाने आली शान हो चुका है, गैबदा नबी का हुक्म हो चुका है। हजरत अबू बकर सिद्दीक चलते हैं और मुसल्ले इमामत पर पहुंचते हैं। मेरे प्यारे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि अबू बकर सिद्दीक मुसल्ले इमामत पर हैं। गैबदा नबी हुजरे आयशा से निकलते हैं, मुस्कुराते हुए निकलते हैं, मस्जिद नबवी की तरफ कदम को बढ़ाया। सहाबे कराम को एहसास हो गया कि अल्लाह के प्यारे नबी आ रहे हैं। ताली बजाई, आपस में इशारा किया, आगे वाले ने दूसरे को इशारा किया, तीसरे को इशारा किया, चौथे को इशारा किया, यहाँ तक अबू बकर सिद्दीक को पता चल गया कि गैबदा नबी आ रहे हैं। प्यारे आका तब तक हज़रत अबू बकर सिद्दीक के करीब पहुँच जाते हैं।
सिद्दीक़ अकबर मुसल्ले से पीछे हटने लगे। अल्लाह के नबी ने बाजू को पकड़ा और बराबर में खड़ा किया और आकाए करीम ने नमाज पढ़ा करके मुकम्मल किया। गोया मेरे आका ये बता रहे थे वो अपने जो है सहाबे कराम को कि सहाबे कराम देख लो और पहचान लो, मेरे बाद जो मेरा खलीफा अव्वल होगा वो अबू बकर होगा, मेरे बाद जो मुसल्ले इमामत संभालेगा वो अबू बकर संभालेगा। अबू बकर सिद्दीक का बयान यानी सदाकत का बयान इंशाअल्लाह कल बयान किया जाएगा। आप कैसे ईमान लाए, आपके हालात जिंदगी किस तरीके से गुजरी, सदाकत का बयान कल सुनाऊंगा। कहने का मतलब यह है कि मेरे प्यारे आका करीम ने नमाज मुकम्मल की और घर तशरीफ लाए। मेरे आका की तबीयत और गड़बड़ होती है और बुखार तेज होता है। जुमा का दिन आ जाता है। हजरत बिलाल से मेरे प्यारे आका ने इरशाद फरमाया, बिलाल मुझे मस्जिद नबी तक पहुंचा दिया जाए। हजरत उस्मान गनी और मौला अली दोनों दामाद मेरे आका के आते हैं, बिलाल भी मौजूद हैं। दोनों दामाद ने मेरे आका के बाजू मुबारक को थामा, लाठी के सहारे गैबदा नबी मस्जिद नबी तक पहुंचते हैं और मिंबर पर मेरे आका लाठी के सहारे खड़े हैं और खड़े होकर के मेरे आका तकरीर कर रहे हैं। आखिरी तकरीर मेरे आका की है, आखिरी खुतबा मेरे आका देते हैं। तकरीर करते करते मेरे प्यारे आका ने एक जुमला कहा, ओ मेरे जानिसार सहाबा सुनो सुनो, ये दुनिया है दुनिया। अगर दुनिया में किसी ने किसी को नाजायज तंग किया है तो या तो उससे माफी मांग ले, अगर नहीं माफी मांगता है या अगर वो नहीं माफ करता है तो कयामत के दिन अल्लाह ताला उसका बदला दिलाएगा। दुनिया में अगर किसी ने किसी कमजोर को सताया है तो अल्लाह ताला इसका बदला कयामत के दिन दिलवाएगा। अगर किसी ने किसी का नाजायज जो है पर परेशान किया है तो रब ताला उससे भी उसका बदला दिलाएगा। अल्लाह के नबी फरमाते जा रहे हैं और आखिर में मेरे आका ने ये जुमला कहा, अगर दुनिया में एक चींटी ने किसी चींटी को नाजायज तंग किया है अल्लाह इसका भी बदला दिलाएगा। और मेरे जानिसार सहाबा, मैं मोहम्मद अरबी आज ऐलान करता हूं कि अगर मुझ पर भी किसी का कोई हक या कोई बदला हो तो वो मुझसे ले सकता है। अल्लाह अकबर। जब इस तरह मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, पूरे मस्जिद नबवी के अंदर चीखें निकल जाती है, दहाड़े मार कर सहाबे कराम रोने लगे। अल्लाह के नबी आप क्या फरमा रहे हैं? आका ने फिर जुमला दोहरा दिया, हाँ हाँ, अगर किसी का कोई हक मुझ पर हो तो वो मुझसे भी बदला ले सकता है। मेरे प्यारे आका जब इस तरीके से फिर इरशाद फरमाते हैं, सहाबे कराम की चीखें निकल गई, सहाबे कराम दहाड़े मार करके रो रहे हैं। एक कोने से एक आदमी खड़ा हो जाता है और कहता है, ए मेरे आका, मेरे माँ बाप आपके कदमों पे कुर्बान हो जाएं। हे मेरे आका, जमीन फट सकती है, आसमान का शामियाना गिर सकता है, और आपकी जबान से निकली हुई बात बदल नहीं सकती। आका, आपने अभी फरमाया है ना कि किसी का अगर कोई हक मुझ पर हो, कोई बदला मुझसे हो तो ले सकता है। हाँ, मैंने कहा है। ए मेरे आका, मैं आपसे बदला लेना चाहता हूँ। ए मेरे आका, मेरा हक आपके ऊपर है। अल्लाह अकबर कबीरा। जरा यार उस मंजर को निगाहों में रखो और सोचो कि आका की तबीयत इतनी खराब कि लाठी के सहारे खड़े हैं, कपकपी तारी है मेरे आका के जिस्म पाक पर, तने अतहर पर हाथ नहीं रखा जाता, इतना तेज आपका जिस्म मुबारक तप रहा है। जिस वक्त उस आदमी ने कहा होगा जिसका नाम उकाशा है, हाँ मेरे आका आपसे मैं बदला लूंगा, बताओ उस वक्त सहाबे कराम के दिल पर क्या बीती होगी, सहाबे कराम को कितनी तकलीफ हुई होगी। जरा उस मंजर को निगाहों में रखो और सोचो। मेरे आका ने फरमाया, उकाशा को मेरे करीब लाया जाए। उकाशा करीब आते हैं। हाँ बोल उकाशा, कैसा बदला? मुझे तो याद नहीं, बता तू कहना क्या चाहता है। उकाशा कहते हैं, मेरे आका, एक मर्तबा आप अपनी ऊंटनी पर सवार होकर के जा रहे थे और मैं रास्ते में बैठा था, आपने कोड़ा घुमा करके अपनी ऊंटनी को मारा था, लेकिन वो कोड़ा मेरी पीठ पर लग गया था, लिहाजा मैं भी आपसे बदला लूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। जैसे इतना सुना सहाबे कराम ने सिद्दीक़ अकबर आगे बढ़े और वो उकाशा के कुर्ते को पकड़ा। हे उकाशा, क्या तेरी अकल मार दी गई है? क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है? अरे मेरे आका के चेहरे को देख, मेरे आका के जिस्म अतहर को देख, किस तरीके से तप रहा है। आका की तबीयत ठीक रही है और ये तू कैसी बहकी बहकी बातें करता है? अगर तुझे बदला लेना है तो अबू बकर सिद्दीक
की पीठ पर एक कोड़े के बदले 100 कोड़े मार ले मगर आका को तकलीफ ना दे। कैसे मुसलमान थे वो, कैसे सहाबा थे। उकाशा कहते नहीं अबू बकर मुझे आपसे बदला नहीं लेना। हजरत उमर फारूक आजम जलील कद्र सहाबी बढ़ते हैं और कहा ए उकाशा सुन, एक कोड़े के बदले हमारे जिस्म पर 200 कोड़े मार मगर आका की तबीयत ठीक नहीं है, आका को तकलीफ ना दे, आका को परेशान ना कर। कैसी बहकी बहकी बातें करता है। कहा उमर हमारा आपसे कोई वास्ता नहीं है, मौला एक कायनात बढ़े, उस्मान गनी बढ़े, सबने कहा 300 400 1000 कोड़े मार ले मगर मेरे आका को तकलीफ ना दे। हजरत कुसुम बिन अब्बास उठते हैं, हजरत कुसुम बिन अब्बास उठते हैं और हजरत फजल बिन अब्बास उठते हैं, हजरत ज़ैद बिन उसामा उठते हैं। सब के सब कहते हैं ए उकाशा एक कोड़े के बदले हमारे जिस्म से खाल खींच ले मगर आका को तकलीफ ना दे। कैसे मोहब्बत करने वाले मेरे आका से थे, किस तरह मेरे आका से प्यार करने वाले वो मुसलमान थे। और आज हम कैसे मुसलमान हैं कि आका के महफिल में आए हो और आका के नाम पर सुभान अल्लाह भी नहीं बोल सकते, माशाअल्लाह भी नहीं बोल सकते। एक वो साहबे रसूल थे जो एक कोड़े के बदले 1000 कोड़ा खाने के लिए तैयार हो गए थे और उकाशा है कि मानने के लिए तैयार नहीं। नहीं नहीं, हमारे आका ही से मैं बदला लूंगा। आका ही ने फरमाया है कि किसी का कोई हक मुझ पर हो तो ले सकता है। इस तरीके से कोहराम मच जाता है, सारे सहाबा दहाड़े मार करके रो रहे हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया उकाशा ठीक है आ अपना बदला ले ले। कहा मेरे आका ऐसे नहीं, वही कोड़ा मंगाइए जिस कोड़े से आपने मेरी पीठ पर मारा था। हजरत उकाशा जब इतना कहते हैं गैब दाना भी हजरत बिलाल को इशारा फरमाते हैं बिलाल जाओ और जाकर के वो कोड़ा लेके आओ जो मैं मैदान जंग में लेकर के चलता था। सद्दीक हजरत बिलाल जाते हैं, फातिमा तो ज़हरा के दरवाजे पर गए, आवाज दिया अल्लाह के नबी ने कोड़ा मंगाया है। कहा आज जुमा का दिन है, मस्जिद में कोड़े का क्या काम। खातून जन्नत ने जब इस तरह सवाल किया हजरत बिलाल दहाड़े मार कर रोने लगे, चीखें निकल जाती है। उकाशा आका से बदला लेना चाहता है। खातून जन्नत जब इतना सुनती है ना, अपने बाप से इस कदर प्यार करती है कि खातून जन्नत जमीन पे गिरती है, बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर के बाद हजरत बिलाल ने फिर आवाज लगाई खातून जन्नत कोला दे दो, आपके अब्बू ने मंगाया है। होश में आती है खातून जन्नत और पर्दे से उस कोड़े को दिया। गैबदा नबी के सहाबी हजरत बिलाल वो कोड़ा लेकर के आते हैं। जब कोड़ा लेकर के चले नन्हे नन्हे कदम से हसन और हुसैन भी घर से बाहर निकलते हैं। खातून जन्नत के घर से बाहर निकले, मस्जिद नबी के दरवाजे पर आए, बिलाल के कुर्ते को पकड़ करके कहा था हसन हुसैन ने ये कोड़ा क्यों ले जा रहे हो, मेरे नाना ने क्यों मंगाया है। हजरत बिलाल ने सारी दास्तान बता दी। दोनों बच्चे आगे बढ़े और उकाशा के कुर्ते को पकड़ा था और कहा था ए उकाशा तू मेरे नाना को मारेगा, तू मेरे नाना के जिससे पाक कर कोड़े लगाएगा। ए उकाशा सुन, मेरे नाना को माफ कर दे, मेरे नाना के जिसमें पाक कर कोड़े ना लगा। ये नन्ही नन्ही पीठ हाजिर है, तू मेरी पीठ पर कोड़े मार ले मगर मेरे नाना की तबीयत ठीक नहीं है, मेरे नाना को तकलीफ ना दे, मेरे नाना को परेशान मत कर। उकाशा ने कहा नहीं बच्चों नहीं नहीं, तुमसे हमारा कोई मुतालबा नहीं है, तुम्हारे नाना ही से हमारा मुतालबा है। सहाबे कराम बहुत खुशामद करते हैं, उकाशा मानते नहीं हैं। करीब पहुंच गए, कोड़ा हाथ में उकाशा लेते हैं और कहा ए अल्लाह के प्यारे नबी एक बात और है। कहा वो क्या है। कहा मेरे आका जिस वक्त आपने मेरे पीठ पर कोड़ा मारा था मेरी जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं था, आप भी अपने कपड़े को जुदा करें। अल्लाहू अकबर। यार गौर करो मेरे भाई, वो कितना दर्दनाक मंजर रहा होगा, वो कितना भयानक मंजर रहा होगा। मस्जिद नबी में जब उकाशा ने इस तरह कहा होगा, फरिश्ते सहाबे कराम की चीखें बुलंद होती हैं, दहाड़े मार करके रोने लगे। कारे उकाशा क्या कर रहा है और क्या कह रहा है। आका ने फरमाया हाँ उकाशा मुझे याद है जब कोड़ा लगा था तेरी पीठ पर, तेरी पीठ बरहना थी, लो मैं भी कपड़े को हटाता हूँ। आका करीम ने अपने कपड़े को उतारना चाहा। अब यहाँ पर एक बात अच्छी तरीके से मेरे भाई समझ लो, यहाँ दो रवायत मिलती हैं। एक रवायत ये है कि अल्लाह ने पुश्त में मोहर नबूवत अता की थी अल्लाह के नबी को। एक रवायत से ये साबित होता है कि अल्लाह के नबी के पेशानी में पुश्त नबूवत अल्लाह ने अता की थी। बहरहाल खुदा जाने उसका रसूल जाने। बहरहाल कहने का मतलब यह है उकाशा की इस हदीस से पता चलता है कि पुश्त में भी मोहर नबूवत अल्लाह ने अता फरमाई थी। जब उकाशा ने कहा कपड़े को हटाओ, जब मेरे आका अपने कपड़े को उतारने लगे, प्यारे आका के पुष्ट यानी पीठ पर जब हजरत उकाशा की निगाह पड़ती है, कोड़ा फेंक करके मोहरे नबूवत को चूम लेते हैं। सुभान अल्लाह।
मोहरे नबूवत को चूमा, कदमों पे गिरे। मेरे आका, मेरी माँ ने वो दूध नहीं पिलाया जो मैं आपसे बदला लूं। ए मेरे प्यारे आका, मैं तो ये बहानेबाजी कर रहा था, मैं तो ये बहाना बना रहा था। आपकी बातों से बैठे बैठे मैंने अंदाजा लगा लिया था शायद मेरे आका पर्दा करने वाले हैं। मोहरे नबूवत किस तरीके से देखा जाए, मोहरे नबूवत की ज़ियारत किस तरह किया जाए, मोहरे नबूवत देखने का मौका सबको कैसे मिला जाए, कैसे मिले, और मोहरे नबूवत चूमने का मुझ गुलाम को कैसे मौका मिले। ए मेरे आका, इसीलिए मैंने ऐसा किया। मेरे आका मुझे माफ कर देना। कदमों पे पड़े रो रहे हैं। आका ने उठाया हजरत उकाशा को और अपने सीने से लगाया, और मेरे आका मुस्कुरा के कहते हैं, ए सहाबे कराम गवाह रहना, ये मेरा सच्चा आशिक है और ये जन्नत में मेरे साथ रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मेरे प्यारे आका मस्जिद नबी से बाहर निकलते हैं, अपने घर आए, हुजरे आयशा में आराम फरमा है। प्यारे आका हुजरे आयशा में आराम फरमा है। सरहाने हसन हुसैन की अम्मा बैठी, मेरे प्यारे आका के सरे मुबारक को गोद में रखे हुए, मेरे आका के जुल्फे मुअम्बर में हजरत खातून जन्नत उंगली कर रही हैं। बहुत प्यार भरे अंदाज में अपने बाप के चेहरे को देख रही हैं। खातून जन्नत ज़ियारत कर रही हैं। अल्लाह के नबी चश्माने मुबारक खोलते हैं और कहते हैं, बेटी अब मैं दुनिया से जाने वाला हूँ। जैसे खातून जन्नत ने इतना सुना, खातून जन्नत के आंखों में आंसू आ गए। हजरत फातिमा तो ज़हरा रोने लगी। फिर मेरे आका ने कहा, बेटी ज़रा कान को करीब करो। फिर कान को करीब किया। अल्लाह के नबी ने कुछ और कहा। प्यारी फातिमा अभी रो रही थी, फिर वो हंसने लगी। ये सारा मंजर देख करके हजरत अम्मा आयशा ने पूछा था, ए बेटी फातिमा एक बात बताओ, जो नबी ने थोड़ी देर पहले कहा तो तुम रोने लगी, फिर कुछ कहा तो तुम हंसने लगी, इसकी वजह क्या है? कहा, अम्मा जी बता दूं, अब्बा ने जब मुझसे ये कहा कि बेटी मैं दुनिया से जाने वाला हूँ तो मुझे रोना आ गया। फिर अब्बा ने कहा, बेटी गम ना कर, अहले बैत में सबसे पहले जो मुलाकात करेगी वो तू मुझसे मुलाकात करेगी। इस बात को सुन करके मुझे हंसना आ गया। चलो अल्लाह का शुक्र है, मैं अपने बाप से सबसे पहले जा करके अहले बैत में मिलूंगी, इसलिए मुझे हंसना आया। थोड़ा वक्त गुजरता है कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम 70,000 फरिश्ते लेकर के, हजरत मलकल मौत भी साथ में हैं, हजरत जिब्रील भी हैं, 70,000 फरिश्ते दरवाजे पर अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह पढ़ रहे हैं। जिब्रील अमी आवाज दे रहे हैं, अंदर आने की इजाजत मांग रहे हैं। खातूने जन्नत ने कहा, जाओ जाओ वापस चले जाओ, तुम लोगों को मालूम नहीं कि मेरे अब्बा की तबीयत खराब है, तुम लोग आकर के बाद में मुलाकात करना। जिब्रील अलैहिस्सलाम से कह रही खातूने जन्नत, मलकल मौत से कह रही हैं। इतना आवाज, तेज आवाज फातिमा की सुन करके अल्लाह के नबी ने आंख खोल दिया। कहा, बेटी क्या बात है? अब्बा जी कोई बात नहीं, आप आराम कीजिए ना, कुछ लोग मिलने आए हैं, वो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह कहकर इजाजत मांग रहे थे। अब्बा जी आप आराम कीजिए ना। गैबदा नबी ने कहा, बेटी तुम्हें पता है आने वाला कौन है, इजाजत लेने वाला कौन है? अब्बा कोई भी हो, आप आराम कीजिए ना। तो नबी ने फरमाया, बेटी तुम्हें पता नहीं, वो है जो किसी से इजाजत नहीं लेता है, सीधे घर के अंदर जाता है, अपना काम करता है। कहा, क्या मतलब? कहा, जिब्रील भी साथ में है, 70,000 फरिश्ते भी हैं, और वो मलकल मौत आवाज दे रहा है, अंदर आने की इजाजत दे रहा है। बेटी जाओ इजाजत दे दो। इजाजत मिलती है, तब जिब्रील 70,000 फरिश्तों को लेके अंदर दाखिल होते हैं। मलकल मौत हाजिर होता है। ए मेरे प्यारे आका हुसैन के दीवानों, मेरे नबी दुनिया में पैदा हुए तो हमको याद किया, पूरी जिंदगी हमें याद किया। अब ये देखना है कि मेरे आका दुनिया से जा रहे हैं तो क्या हमें फरामोश करते हैं या याद करते हैं? और इस हदीस से पता लग जाएगा, इस हदीस से अंदाजा लग जाएगा। गैबदा नबी के सामने मलकल मौत, अल्लाह के नबी के सामने मलकल मौत अर्ज करता है, मेरे आका अल्लाह ने जन्नत को सजा दिया है, अल्लाह ने बड़ी मोहब्बत से आपको याद किया है, और अल्लाह ने ये भी फरमाया है, मेरे महबूब से पूछ लेना अगर वो दुनिया में और रहना चाहे तो कोई बात नहीं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब रब ने मुझे याद किया है तो मैं चलने के लिए तैयार हूँ, मैं रब की ज़ियारत के लिए, रब के दीदार के लिए मैं तैयार हूँ। इस तरह कहा और मलकल मौत से कहा, अपना काम कर। मलकल मौत जब रूह कब्ज करने लगा, मेरे आका के आंखों से आंसू निकले। टायर टायर रुक जा रुक जा। मलकल मौत रुक जाता है। ए मेरी आका क्या बात है? कहा, ये बता, इस वक्त जितनी सख्ती मुझ पर हो रही है, क्या मेरी उम्मतियों को भी मरने के टाइम ऐसी तकलीफ होती है? हे मेरे आका, आप पर कोई तकलीफ नहीं है। लोगों की रूह निकालता हूँ तो बड़ी बेदर्दी से निकालता हूँ, बड़ी सख्ती से निकालता
चाहता हूँ। अल्लाह के प्यारे नबी ने कहा नहीं नहीं, ए मलकल मौत, 70,000 फरिश्तों के सामने और सिदरा के मलाइका जिब्रील अलैहिस्सलाम के सामने तुम्हें वादा करना पड़ेगा कि जितनी गुनहगार मेरी गुनहगार उम्मतियों को मरने के टाइम तकलीफ देना हो, आज मुझ मोहम्मद अरबी को दे ले, मेरी उम्मतियों को मरने के वक्त तकलीफ ना देना। अल्लाहु अकबर कबीरा। इस तरीके से मेरे आका दुनिया से जा रहे हैं तो हम लोगों को याद फरमा रहे हैं। अल मुख्तसर यूं सुनो मेरे भाई, बड़ी तेजी के साथ बयान कर रहा हूँ। मेरे प्यारे आका करीम की जिसमें अतहर से रूह जो है कफ से उनसरी से प्रवास कर जाती है, मेरे प्यारे आका बज़ाहिर निगाहों से रूपोश हो जाते हैं। अब जब मेरे प्यारे आका दुनिया से बज़ाहिर छुप जाते हैं, उस वक्त हजरत उस्मान गनी और मौला अली मस्जिद के अंदर मौजूद थे। जैसे उस्मान गनी को ये खबर मिली कि गैबदा नबी दुनिया से कूच कर गए, उस्मान गनी ने सर को पकड़ा, मस्जिद के एक कोने में बैठ गए। सक्का तारी हो गया, बेखुदी तारी हो जाती है। मौला अली को जब पता चलता है, मौला अली की बेकरारी बढ़ती है। मस्जिद नबी में कभी इधर जाते, कभी उधर जाते, कभी इधर जाते, कभी उधर जाते, बिल्कुल बेहाल हजरत मौला अली हैं। लेकिन हजरत उमर जलील कद्र सहाबी, जिनका बयान इंशाअल्लाह परसों किया जाएगा जिंदगी रही तो, क्योंकि हजरत उमर की अदालत का बयान परसों इंशाअल्लाह किया जाएगा। बल्कि अब्दुल कादिर खशमती तो ये सोच रहा है कि इंशाअल्लाह परसों अदालत और शुजात यानी दो सहाबे कराम का जिक्र किया जाए, ताकि तेजी के साथ बात भी समझ में आए और उधर ज़्यादा टाइम भी करबला का बयान सुनने का मौका मिल जाए। जैसे आप लोग इजाज़त देंगे इंशाअल्लाह वैसे बयान किया जाएगा। वरना अगर एक एक सहाबी को लेकर के चलना शुरू किया ना तो महीनों लग जाएंगे, लेकिन दास्तान ख़त्म नहीं होगी, सालों लग जाएंगे, दास्तान ख़त्म नहीं होगी। अल मुख्तसर यूं सुनो कि मेरे आका की मौत की खबर, मेरे आका के विसाल की खबर जब हज़रत उमर फारूक आज़म को मिलती है, उमर फारूक आज़म दीवाना हो जाते हैं। तलवार निकाली म्यान से और मस्जिद नबी में गली गली में दौड़ने लगे। कौन कहता है कि मेरे आका रूपोश हो गए? अगर किसी ने कह दिया कि आका करीम का विसाल हुआ तो उनकी गर्दन को काट दूंगा। मेरा नबी जैसे कल जिंदा था वैसे आज जिंदा है और क़यामत तक के जिंदा रहेगा। इस तरह नारे लगाते हैं, यहाँ तक कि हजरत अबू बकर सिद्दीक जो मेरे आका के दोस्त हैं, मेरे प्यारे आका के दोस्त भी हैं सिद्दीक अकबर, और मेरे आका के रिश्ते में ससुर भी हैं। ये हजरत सिद्दीक अकबर उस टाइम अपने घर पे मौजूद थे। जब इन्हें पता मिली, ये भागते हुए मस्जिद नबवी में गए तो क्या देखा, उस्मान गनी बेखुदी के आलम में मस्जिद नबवी की दीवार से टेक लगाए बैठे हैं। मौला अली कुछ बात नहीं करते, गुमसुम हैं, इधर से उधर दौड़ लगा रहे हैं, इधर से उधर चहलकदमी कर रहे हैं। लोगों से पूछा उमर कहाँ है? लोगों ने कहा उमर तो बिल्कुल दीवाना हो गए। उमर तलवार लेकर के मदीने के गली गली में घूम रहे हैं और कहते हैं अगर किसी ने कह दिया कि मेरे आका दुनिया से चले गए तो उनकी गर्दन को मार दूंगा। अबू बकर सिद्दीक के होश हवास दुरुस्त थे, वो दौड़े, कहा उमर को पहले रोका जाए क्योंकि बहुत जलाली सहाबी है। उमर के करीब गए और उमर के हाथ को पकड़ करके मस्जिद नबवी में लेके आते हैं और कहते हैं उमर बैठ जाओ। कहा नहीं, मैं बैठूंगा नहीं। लोग कहते हैं कि मेरे आका दुनिया से चले गए। कौन कहता है? सिद्दीक अकबर तुम बताओ। सिद्दीक अकबर ने कहा परेशान न हो, रब का कुरान सुना पढ़ पढ़ करके सुनाते हैं, नबी की हदीस पढ़ पढ़ कर सुनाने लगे और कहा उमर जरा बैठ जाओ। बड़ी मिन्नत और समाजत के बाद हजरत उमर बैठते हैं। अब मस्जिद नबवी में मीटिंग की जाती है कि आका करीम को दफन कहाँ किया जाए। कुछ लोगों ने कहा जन्नतुल बकी में दफन कर दिया जाए, कुछ लोगों ने कहा नहीं मस्जिद नबवी में मज़ार बनाई जाए, तो कुछ लोगों ने कहा नहीं हज़रत मेरे आका की मज़ार बैतुल मुक़द्दस में बनाया जाए, क्योंकि तमाम नबियों की कब्रें वहाँ पर मौजूद हैं, तमाम अंबिया की मज़ार वहाँ पर है। लोग मीटिंग कर रहे हैं, लोग राय कर रहे हैं, अपनी अपनी राय दे रहे हैं, सारे लोग राय दे रहे हैं, सब मशवरा कर रहे हैं। इतने में मौला अली, जिन्हें इल्म का समंदर कहा जाता है, जिन्हें बाबुल इल्म कहा जाता है, जिनके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुम बाबूहा, यानी मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसके दरवाज़ा है। हजरत अली ने कहा खड़े होकर के, ए लोगों मैं कुछ कहना चाहता हूँ, मेरी बात को सुनो। लोगों ने कहा क्या कहना चाहते हो? अली कहा सुनो, नबी को कहीं और दफन नहीं किया जाएगा, नबी को हुजरे
عائشہ میں دفن کیا جائے گا۔ لوگوں نے کہا یہ کیوں؟ کہا اس سے اچھی دنیا میں کوئی زمین ہو ہی نہیں سکتی ہے جہاں پر آقا کریم نے پردہ فرمایا ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لوگ متفق ہو جاتے ہیں اور حجرے عائشہ میں آپ کو دفن کرنے کا انتظام کیا جاتا ہے۔ میرے بھائی نماز جنازہ کیسے ہوئی، نماز جنازہ کس طریقے سے ادا کی گئی، اس موضوع پر اگر آیا تو آدھا ایک گھنٹہ اور چاہیے۔ بس آخری بات یہ سنو کہ آقا کریم کو غسل کن کن صحابہ کرام نے دیا تھا۔ اب لوگ مشورہ کرتے ہیں نبی باوقار کو غسل دیا جائے۔ قرآن میرا فرماتا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین، انسان کا کھلا ہوا دشمن شیطان ہے۔ ارے جب انسان کا کھلا ہوا دشمن شیطان ہے اور میرے پیارے آقا کریم کے غسل دینے کی باری جب آتی ہے نا کہ غسل دیا جائے، مشورہ کر رہے ہیں صحابہ کرام، آواز آتی نہیں 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 غسل نہیں دیا جائے گا، یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کو بغیر غسل دیے ہوئے دفن کر دو۔ سب لوگوں نے کہا شاید اللہ کی آواز ہو، غیبی آواز ہو۔ سکتہ طاری ہوا سب پہ۔ مولا علی علم کے پہاڑ، انہوں نے کہا نہیں اور انتظار کرو، دوسری آواز کا انتظار کرو۔ تھوڑی دیر کے بعد دوسری آواز آتی ہے، اے میرے آقا کے جانشار صحابہ، نبی کو غسل دے کر کے کفن دے کر کے دفن کیا جائے۔ حضرت مولا علی نے پوچھا اے آواز دینے والا تو کون ہے؟ کہا میں خضر علیہ السلام ہوں۔ کہہ دو سبحان اللہ، میں خضر علیہ السلام ہوں۔ کہا تھوڑی دیر پہلے کس نے آواز دی تھی؟ کہا وہ تو ابلیس کی آواز تھی، وہ تو شیطان کی آواز تھی۔ دیکھو وہ شیطان صحابہ کرام کو بھی بہکانے کی کوشش کر رہا ہے، تو ہم اور آپ کس کھیت کے مولی ہیں؟ کہنے کا مطلب یہ ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، نام یاد کرو، حضرت عباس، حضرت قسم بن عباس 2، مولا علی 3، حضرت فضل بن عباس 4، حضرت اسامہ بن زید، ان 5 صحابہ کرام نے مل کر کے میرے پیاری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا، کفن دیا، نہلایا۔ اس کے بعد انہی 5 لوگ میرے آقا کو قبر انور کے اندر اتارا۔ حضرت قسم بن عباس سب سے بعد میں قبر انور سے نکلے۔ حضرت قسم بن عباس کہتے ہیں کہ جب مولا علی اور میرے سب ساتھی باہر نکل گئے تو میں نے سوچا کہ اب میں آخری میں نکل رہا ہوں، آخری مرتبہ نبی کے گورے گورے رخسار کی لاؤ زیارت کر لوں۔ حضرت قسم بن عباس کہتے ہیں کہ جب آقا کے چہرے کو میں نے کھولا تو میرے آقا کے دونوں ہونٹ ہل رہے تھے۔ مچل کر بول دو سبحان اللہ۔ وہ میرے آقا جو پیدا ہوئے تو ہمیں یاد کیا، پوری زندگی ہمیں یاد کیا، آج قبر کے اندر آرام فرما ہے، پھر بھی حضرت قسم بن عباس کہتے ہیں کہ میرے آقا کے دونوں ہونٹ ہل رہے تھے۔ قسم بن عباس کا کہنا ہے کہ میں نے کان کو منہ کے قریب کیا کہ دیکھو میرے آقا کچھ کہنا چاہتے، کچھ بولنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت قسم بن عباس کہتے ہیں قسم ہے خدائے وحدہ لا شریکی، قبر انور کے اندر میرے آقا آرام فرما تھے مگر اپنی زبان سے کہتے تھے یا ربی حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو جنت عطا کر دے۔ او میرے آقا حسین کے دیوانوں، پوری زندگی میرے آقا نے ہم لوگوں کو یاد کیا۔ یہ رہا رسالت کا بیان۔ انشاءاللہ کہ میرے آقا کے بعد خلیفہ کون بنتا ہے، امامت کی باغ دور کون سنبھالتا ہے، اس سے آگے کا بیان انشاءاللہ کل کیا جائے، کل کیا جائے گا۔ چلتے چلتے آخری اعلان، آخری بات یہی ہے کہ نماز عشاء کے بعد فوراً آپ حضرات آنے کی کوشش کریں۔ آج تو یہ بچے لوگ اور یہ علماء کرام ٹائم سے آ گئے، آپ لوگوں نے آنے میں تاخیر کی، اور تم لوگوں سے اچھی تو میری ماں بہنیں ہیں، یہ بیچاری پہلے ہی آ جاتی ہیں۔ تم لوگوں سے اچھی تو یہ میری ماں بہنیں ہیں۔ تم لوگ ادھر ادھر کھڑے ہو کر کے باتیں کرنے میں ٹائم وقت ضائع نہ کرو یار، پتہ نہیں میرے بھائی اگلے سال ہمیں یہ دن دیکھنا نصیب ہو یا نہ ہو۔ زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا۔ جو جیتے ہو اس دنیا میں تو کوئی کام کر جاؤ، خدا توفیق دے تو خدمت اسلام کر جاؤ۔ مذہب اسلام زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت پائندہ آباد، وما علینا الا البلاغ۔ حسن حسین کے نانا یعنی ہمارے تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم سب کھڑے ہو جائیں اور محبت کے ساتھ سلام پڑھیں۔ السلام علیکم۔